on the second Saturday for the webinar. Today in the webinar, our chief guest is Mr. Manoj Kumar Srivastava, and our guest speaker is architect Nilesh Suchdev from Rajkot, Gujarat. He will deliver his lecture on IVS, International Valuation Standards. Like all the banks are on these days are adamant on the fact that you are giving the valuation on IVS based. He will clear all the doubts. So now I hand over to Mr. S.S. Das, President, for the convening this meeting. Mr. S.S. Das, please. Good morning to everybody. I like to welcome all our members as well as guests joined us from other states also. I like to welcome our chief guest DGM Sri Manoj Kumar Srivastava, to whom I had invited yesterday because I had some throat problems, so I could not go to him. So yesterday afternoon I had gone to him, but he suddenly agreed that he will join. So on behalf of the association, I would like to thank a lot to him. My special thanks goes to my friend, architect Nilesh, who has agreed. Actually, we had seen him some 5 to 6 months back when there was a tragedy in Rajkot. So we had requested him to join us as a chief, as a big guest speaker also. So actually, we'll present after the program, generally after the topic, we'll just like to present our certificate participants to our chief speaker. But since our chief guest will be busy to go to center, so he present the certificates to him on the display before the starting of the programs. And on the other hand also, Nilesh he will leave us by at 8 o'clock. So his program will start at 6:55 and complete at 7:45. So we'll complete our discussion, open discussion within 15 minutes or so, because he had some urgent work. So he'll leave at 8 o'clock. So without any delay, we'll start the programs. We cannot give anything to our chief guest because we are working under them and we are their, he is our client and we are their consultant. So we cannot give to him, but in love of tokens we can give, and I will welcome him. And to our speaker, of course, our DGM sir will present one certificate application to him, and after the ending of the webinar, it will go received by him also through mail. So now I like to, I think we will start the programs without delay. I request Anand Singh. Today I was also talking to DGM sir. Then he was asking who is the speaker. Then I told that the speaker is from Rajkot. Then he told her I will be knowing him because he has also posted somewhere Rajkot also. So I think Nilesh and DGM sir both will be somewhere or other, they will be knowing each other because he is much more interested when he came to know that the speaker is from Rajkot. So he has got posted in Rajkot also, DGM sir, who is with us from last 2 to 3 years in Kanpur. Now I like to request our Vice President Anand Singh to come forward and introduce our respected chief guest, Sri Manoj Kumar Srivastava. Anand Singh, please. Anand Singh, please. Anand. Anand, please. Anand, are you here? I think he is not coming to contact. Okay, then I would like to, I'll be very much happy that I'll be in a position to introduce our chief guest. Because Anand he had joined, but I think what is it, due to some problems he is not
महाराज due to इसको connection problem there will be problem. So Manoj Kumar Srivastav, he is working as a regional head in Central Bank of India, and of course he has promoted to DGM. बोलना Banking experience of more than 35 years and worked in many states. These are UP, Bihar, Tamil Nadu, Gujarat, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Madhya Pradesh. Experience as branch head, branch officer, training college, regional head in Kota and Rajasthan. Also experience of soft skill, motivational trainer, and was guest faculty in many banks at Bhopal. That means he had worked in number of states. That was he had gained lot of experience, and we are also gaining from him. And I'm sure that in his speech for 10 minutes, we'll gain something from him. So this is the short brief about our DGM Saab, Mr. Manoj Kumar Srivastav. Now I'll request DGM Saab, our chief guest, to come to the come to the speaker and tell something to us and advise us what we are doing and what we should do and what we'll expect from the banks and what the bank expects from valuers. Please, our chief guest Manoj Kumar Srivastav, sir, please. To all of you, respected Sri SSS Das Sir, President, All India Valuer Association, respected Manoj Kumar Srivastav ji, Vice President, All India Valuers Association, and respected Dr. Mukesh Kumar Singh Sir, Chairman IEI and KLC, respected Sri Hari Om Giri Sir, Joint Secretary AIBA, and our guest speaker sir, Dr. Nilesh Sachdev sir, and Joint Secretary Sri Lalit Kumar Mishra sir. कैमरा बंद है नहीं Once again, a very good evening to all of you, and it gives me जो बोल रहे हैं immense pleasure to be a part of technical webinar of All India Valuer Association. I extend सर्टिफिकेट डिस्प्ले कर देते my हैं personal thanks, not only thanks, but a bunch of thanks to All India Valuer Association for inviting me as a chief guest on this occasion. As a banker, I feel the role of a valuer in our bank in taking the credit decision in various while we are going to extend credit facilities to our borrower. Your reports gives us a support. Your report gives us a confidence. Your report gives us a trust that the credit facility we are going to sanction based on your valuation will be viable for the entire period and remains standards in our books. I personally be in contact with all our impanel valuation. I always seek their suggestion. I always take their opinion about any property, whether there is any defect or it is defect free, and we will go forward. As a banker, I also know your report is very, very valuable for us. Your report is a backbone for is an important documents in our loan file, and not only for taking credit decision while sanctioning the loan, but after some time, in any case, if the account turn to NPA, again we seek your report, we invite your reports, valuation reports, and based on that valuation reports, we take the decision on the recovery process of our bank. Once again, thanks a lot. Thank you very much for inviting me as a chief guest on this occasion, on this technical webinar, and I wish a very, very great success of this webinar and all the best. Thank you. Thank you, sir. I'd like to request Mukesh Singh, Dr. Mukesh Singh, who is the chairman of Institute of Engineers, as well as he was the director of UP Textile Institute also. Sir, I will request our chief guest to wait for this 10 minutes so that
After this, he will represent our certain participants to our speaker. Now, request Dr. Mukesh Singh to tell something to us. Thank you, Engineer S.S. Das, for inviting me to welcome the all participants of this technical webinar. I would like to welcome today's chief guest, Manoj Kumar Srivastava, sir. He is such a knowledgeable and senior person to be the chief guest of this webinar. I would like to welcome today's guest speaker, Nikhil Sachdeva, sir. He is joining us from Rajkot, Gujarat. So it gives me an immense pleasure to listen such a senior and experienced person who have already devoted his life and more than 30 years uh, of their life for valuation of their various type of properties. As our chief guest rightly said, that your decision that makes very valuable for all banks, not only for his bank but all banks, because on the basis of your decisions, they decide the capacity of a borrower. So I hope that today's webinar will also give deep sense of knowledge of today's challenges. So once again, I am thankful to all valuers who are present here, and thankful to the IWA continuously organizing such a good programs regularly. In last program, there was some problem and speaker were not present, but Engineer S.S. Das took that responsibility and completed that webinar successfully. So thanks a lot. Thank you, Dr. Mukesh. Now I request our chief guest to present one certificate appreciation to our speaker. Of course, this is just before the speaker because our chief guest is going to leave as he has some urgent work. And I request Architect Nilesh to receive online because we have online system no, so we'll taking and handover will be through online. But after your lecture is completed, you will receive it through mail. Now I request our chief guest Manoj Srivastava sir, please give the certificate. Yeah. First of all, many congratulations to Nilesh sir for receiving this certificate. Congratulations. And Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Welcome, sir. I did the certificate of appreciation. IWA is pleased to convey Architect Nilesh Sachdev its appreciation for outstanding contribution in enhancing knowledge of its member through presentation on the subject IVS changes coming in the webinar field on 11th of May 2024. This certificate of appreciation is awarded by myself, Sri Manoj Kumar Srivastava, DGM Central Bank of India, Kanpur, on behalf of the All India Valuer Association. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. I greatly appreciate this gesture of IWA, as well as I appreciate Manoj sir you for giving this token of appreciation to me. I'm really indebted. Thank you, sir. It's my pleasure, sir. Thank you. Now I like to thank Manoj Kumar Srivastava sir, our chief guest, with a token of love to him. And since he is busy, I would like to request you to be sometime to give some time to us so that you can have a some gain from Nilesh sir. So this is up to you. But on behalf of IWA, I would like to thank you for joining us as the chief guest. Thank you to our chief guest Manoj Kumar Srivastava sir. Thank you a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Now turn comes to introduce our chief great speaker. Actually, for a great speaker, we need some great introduction also. So we had no other name I found. So I thought his friend from Delhi, Hariam Giri, should introduce him. So I like to request Hariam Giri, who is our Joint Secretary of Delhi Center, to introduce our guest speaker, who is also his friend also.
Please, Hariom Giri, please. Thank you, Doctor. Please, please. Mr. Thank you, Doctor. Mr. Neil Dev is an architect and technical legal consultant. He has done his BArch and LLB. BArch from MSU University, then LLB from Saurashtra University, and Master of Real Estate from Annavai University, and Master in Plant and Machinery also from ISTCM University. He is a Canadian and technical. He has done a lot of consultancy work in field of valuation, then technical legal reports, then as well as legal valuation of plant and machinery, and he has vast experience. He has also done General Secretary. He also joined Center for IOV Institutes of Value, Delhi, and he is a chartered engineer, and he has done post valuation land and building as well as plant and machinery. Or he is a fellow member of Institutes of Value and chartered engineer of Institutes of Engineer Kolkata, and member of Council of Architecture, and he is a registered valuer also IBPI, and Indian Council of he is a complete expert. He has done IBPI under 257, and also Indian Council of member of Indian Council of Architecture, and he has lot of experience in this field. He has done lot of thousands of technical valuation as well legal report as well as technical quality reports. Project he has also done lot of projects in this field, and he has 24 to 25 experience in this valuation field, and a total 34 to 35 year experience in totality of engineering field. That's a small introduction. Sorry for interruption. Over to Mr. Das. एक्चुअली इंट्रोडक्शन तो हरियम ने कर दिया. एक चीज़ भूल गए. एक्चुअली मैं सत्यवाजी का फैन इसलिए हूँ, ये नहीं कि अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन वो अच्छा साइकिल चलाते हैं. हमने देखा वो बहुत किलोमीटर साइकिल चलाते हैं. उस दिन हमने इनका एक वेबिनार अटेंड करी थी. फिर रात को जो प्रोग्राम खत्म फ़ोन किया, मैंने कहा भैया कहाँ हो? मैंने साइकिल चला रहा हूँ. मतलब यहाँ पढ़ाया, वहाँ साइकिल चलाना शुरू कर दी. तो इनका हॉबी मैं देख रहा था कि एंजॉय साइकिलिंग, क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ कि साइकिल करीब 10-15 किलोमीटर चलाते रहते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो. ये हॉबी है जो बहुत अच्छा काम में देती है. तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा हमारा गेस्ट स्पीकर साहब से टू स्टार्ट हिज लेक्चर, प्लीज. आर्किटेक्ट लेस. Thank you, sir. Thank you, Das Saab. Thank you, Manojji, Aiba, all the members, Hariji, who is a good friend of mine. Thanks, Lalitji, and all the moderators of Aiba for giving me this opportunity. With that, I'm also thankful to Manoj sir for spending time and being with us and motivating us to continue with the activities of IIBA. My sincere thanks also to IIKLC and Mukesh sir for
inspiring us to continue doing these activities. I'm now sharing my screen. I have one request to make that at some point of time, if my audio is not clear, I request Das sir or somebody to actually give me a call if required, so that it doesn't happen that because I will not be aware if at all somebody posts a message or there is. If I'm not getting audio properly, then I will not know that if somebody is saying that your voice is not clear. So if there is a situation like that and you feel that I'm lost, please do give me a call on my phone to actually tell me so that whatever is the problem, we can connect. Now I trust that the screen is visible at this point of time. I hope there's no disturbance, even in audio. So today we will talk about IBS and what are the changes that are coming. Among the members who have joined, I believe everybody is well aware of what is IBS and also that the new version of IBS is out. But we will still talk a little about that and what is changing, what was, and what is coming. We are well on time, so I think we should be able to do good justice to the content. I'm thankful, as I said, to IVA and to IIKLC for arranging this session. Hari has given a very elaborate introduction. In fact, I don't even deserve all that. But there is one purpose of this particular slide, and that is the contact information. You can connect with me on LinkedIn at the handle suchdeves. So linkedin.com/in/suchdeves. You can connect with me there or on Insta at suchdeves. You can write to me on my mail address, which is nilesh@suchdeves.com. I use a U in all my listings, so please don't write the traditional spelling of Suchdev, which is SSH. It is SUCHDEV. And all my, because my wife is also an architect, it's a joint effort, and even at Suchdev Associates, my firm, entire work is a teamwork. So we always use the plural Suchdevs to identify the team of Suchdev Associates. So the website is also suchdevs.com. So nilesh@suchdevs.com. Or you can connect with me on the phone, 93757-50700. You can WhatsApp me, ping me. We can communicate on messages. Of course, my landline address is there in the hope that someday, if anybody of you is visiting Gujarat, Saurashtra, Rajkot in particular, you will make it a point to visit me and we can have a cup of chai together, or probably we can go out and have a meal. And that is how the camaraderie and the fellowship builds. So I really look forward to that, and that is indeed the purpose of this webinar also for me, to be able to connect with my old friends. I can see a lot of friends joining this webinar right now. Thank you, Amrit Bhai. Thank you, Hariji. I mean, there are so many friends on this in this webinar right now, and I hope to make many more during this webinar. We are celebrating 30 years of Suchdev Associates. It was established in 1993. We just completed 30 years some months back. And so we are celebrating 30 years of Suchdev Associates, and we are making a conscious effort in this year to give back to the society what all I have actually gained from it. Before I start my presentation, there are some very small disclaimers. First is that IBS, IBSC are copyright trademarks of IBS, and the terms are used, the logos are used here only for the educational purposes. I definitely, obviously, do not have any copyrights on them. Also, if you look at the screen, you will see that there is this old logo of IBSC and there's this new logo of IBSC. So wherever in my presentation you see the old logo, that will denote what was the IBS standards before, and the new logo of IBSC will denote what is
the IBS standards now. So, so if at any point of time you see the old logo, you know that we're basically talking about the old IBS, and the new logo will basically denote the new IBS. Of course, these are not the same things, but it is only used as a symbolization for symbol purpose only. There is no direct connection. Also, if there are any errors or omissions or misrepresentations, please bring them to my attention, and I'll be very happy to correct them. Also, the terms, the views presented here are solely my own and not uh, of IVA or IES. So, if there are any mistakes, they are very much my own. To start, before starting, I would, on a lighter note, I would like to ask the attendees here. Can you please tell me what's the difference between USA and USP? Can somebody please unmute themselves and tell me what is the difference between USA and USP? Can somebody please unmute themselves and tell me? Any wild guesses? It's just a joke, so it's okay. You can take anything. कुछ भी कह सकते हैं. जोक है ये. तो आप यूएसए और यूएसपी में क्या फर्क है? कोई भी कुछ. अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ. ये बेसिकली ये जोक है अमेरिका पे कि one has standards. ये सभी नंबर का यूएसबी में स्टैंडर्ड्स होते हैं. यूएसबी 3, यूएसबी 3.1, यूएसबी 3.2, USA has no standards. So that's basically it's supposed to be a joke from USA. But each joke, I find it very interesting because every joke has got something behind it. And that's why I'm very fond of jokes and cartoons. Because there is always a very serious matter behind each joke or cartoon. Each cartoonist, R.K. Lakshman, through his cartoons, brought on an immense change in the society. And वो जो sarcasm होता है हर एक जोक के पीछे, अगर हम उसको समझ पाए तो it would really help. So why ideas first? What is new, what is not? We'll talk about that. Before that, why ideas? So first thing is, the first mode of IBS is consistency, comparability, and transparency. How does IBS bring about consistency, comparability, or transparency? अगर पूरे दुनिया में हम एक ही स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी आएगी. सो दैट इज कंसिस्टेंसी. अगर मैं ब्राजील से एक रिपोर्ट आया है और उसको मैं पढ़ रहा हूँ तो वो क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं, वो क्या किस टर्म से उनका क्या मीनिंग है, वो मैं तब समझ पाऊंगा जब मैं ये समझूंगा कि उनके वो रिपोर्ट भी आईबीएस कंप्लायंट है. तो आईबीएस की जो टर्मिनोलॉजी है, आईबीएस की जो ग्लोसरी है, आईबीएस में अंदर जो डेफिनेशंस दी गई है, वही डेफिनेशंस, वही अप्रोचेस, वही मेथड्स की ये बात कर रहे हैं अगर वो रिपोर्ट आईबीएस कंप्लायंट है तो. सो देयर इज अ कंपैरेबिलिटी. सो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हो या इंटरनेशनल डिसीजंस हो, इकोनॉमिक डिसीजंस हो, या कोई भी इंटरनेशनली अगर एक दूसरे के साथ या रीजनली भी एक दूसरे के साथ अगर उसको कंपेयर करना चाहे तो अगर हम ओवरऑल ही रिपोर्ट आईबीएस compatible है, IBS compliant है, तो you can definitely know that what the other person is talking about. And transparency, how transparency? Because अगर मैं IBS follow कर रहा हूँ तो it has laid out the standards as to how I can arrive at my value and how I can make my investigations, my inspections, my analysis, my data, the quality of my data, the inputs, everything. So there is a built-in transparency into the system. So that is the biggest reason why it's important to have IBS. Now, at the start of the session, Dasar said something very important, and when Manoj sir was also there, that more and more banks are asking for IBS compliant reports now. Can we produce IBS compliant reports? Yes, no. What are the hitches? What do we need to do? That is a different story altogether. But first, let us understand what was and what is.
another reason why IBS is that it has got a worldwide reach. 900 से ज्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है आज IBSC में और 137 से ज्यादा कंट्रीज में IBS जो है वो एक्सेप्टेड है. ऑफ कोर्स 100 से ज्यादा कंट्रीज में वो ऑलरेडी एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है. Uniform standards across the world help develop economy besides increasing the interoperability of the various stakeholders. And adoption of IBS results in more credible and reliable valuations. So these are the reasons why we want to say that IBS should be adopted. Then again, I'm coming back to the joke, and this is again a very serious joke. A situation is that there are 14 competing standards. So the other person says, 14? Ridiculous. We need to develop one universal standard that covers every use case. Yeah, let's do that. So situation happens what? 14 तो थे, 15 नया बन गया. Now there are 15 standards. So the standards make a sense only if there is a singular standard. The minute during the V20 in Delhi, where Hariji was there, I was one of the speakers, and Ben Elder said a very interesting thing, that more than one standard is no standard at all. I also had a very important point to make, and that is that India आज की तारीख में जब अपने इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स का सोच रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी है, होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है. हम इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स के बगैर नहीं काम कर सकते. हम केवल इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करके काम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी जो मार्केट है उसके जो फोर्सेस है वो बिल्कुल अलग है, और जो हमारे पास एविडेंस ऑफ वैल्यू है वो उसमें बहुत बड़ा फर्क है. तो हमको इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम स्टैंडर्ड्स को री इन्वेंट ना करें. ये बहुत जरूरी है कि हम इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स में जहाँ गैप्स है, जो सिचुएशन हमारे इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रही है, उसको एड्रेस करते हुए सब स्टैंडर्ड्स, यानी सब स्टैंडर्ड्स मीनिंग टू से नॉट सब स्टैंडर्ड बट स्टैंडर्ड्स विद इन द स्टैंडर्ड्स, एज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स हम उसको डेवलप करें. तो ये बहुत जरूरी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, and this I have been advocating to everybody who has, every institution who has talked about making standards, as well as I've talked to government bodies also about this, that when Indian valuation standards are made, because competing work हो रहा है, कुछ institutions भी अपनी तरह बना रही हैं, कुछ organizations भी अपनी तरह बना रही हैं, कुछ दौड़ में लगे हुए हैं कि आज मैं बना दूं तो कल कोई दूसरा बना देगा, उसके पहले मैं अपनी डाल दूं. उस दौड़ में ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर हम अगर व्हील को रीइन्वेंट करेंगे तो वो बहुत गलत होगा, बिकॉज कभी भी हम वो पेस को मैच नहीं कर पाएंगे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रहा है. अब हम बात करते हैं व्हाट इज देयर इन द न्यू IBS एंड हाउ इट केम अबाउट. सो द न्यू वर्जन ऑफ IBS हैज बीन रिलीज्ड ऑन 31 जनवरी 2024, जिसकी एडॉप्शन डेट बेसिकली 31 जनवरी 2025 है. लेकिन हम इसके पहले भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं. आज की तारीख में भी मैं रिपोर्ट मेरा दे सकता हूँ which is compliant to IBS 31st January 2020. So early adoption is encouraged. But whatever you do, you need to mention in your report which particular IBS you have followed while making your report. अच्छा, ये जो नया IBS आया उसको जब उसका एक्सपोजर ड्राफ्ट जब आया था तो उन्होंने 90 दिन का टाइम दिया था, and they had invited comments on that exposure draft. So you can see that Asia Pacific में से maximum comments आए थे, which is 32%, which includes India. There were 32 comments from Asia Pacific, 32%. Americas में से, Americas means America and the those countries में से 17%. MENA में से 12%, Europe में से 24%, and others comprised of 15%. But do you know कि in all कितने responses आए थे ये exposure draft पे? कुछ कोई मुझे बता सकता है कि कितने responses from across the world? 90 दिन का टाइम दिया था रिस्पॉन्ड करने के लिए. मैंने भी काफी वेबिनार्स किए थे जिसमें मैंने क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है,
कहाँ पे हमारी कंसर्न्स है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। कुछ आर्मियों के साथ भी मैंने किए थे, कुछ इंडिविजुअली भी मैंने प्रोग्राम किए थे, कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ भी मैंने प्रोग्राम किए थे। तो कोई बता सकता है कि कितने रिस्पॉन्स पूरी दुनिया में से आए होंगे और कितने इंडिया में से आए होंगे? कोई कैन समबडी जस्ट मेक वाइल्ड गेस कि क्या होगा, कितना होगा? तो मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया में से इस बार जितने रिस्पॉन्स आए उतने पहले कभी नहीं आए। 1981 में आईडीएससी की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई, ऑफ कोर्स उसका नाम थोड़ा अलग था, लेकिन आईडीएससी के एस्टैब्लिशमेंट से उन्होंने आज तक जितने भी चेंजेस किए वो सारे उन्होंने एक्सपोजर ड्राफ्ट्स लाके उसको पब्लिक डोमेन में रख के किए थे। लेकिन इस बार जितने रिस्पॉन्स आए उतने पहले कभी नहीं आए थे। लेकिन इस बार कितने आए? 117 responses from across the world। और उसमें से इंडिया में से कितने थे? 7 responses from India, which was again probably the largest from across the world। इंडिया में से 7 जो थे वो शायद हाईएस्ट नंबर रहा होगा या more or less, but India gave a lot of responses comparatively this time। बट फिर भी मैं ये मानता हूँ कि हम इस बारे में थोड़े कम अवेयर हैं, थोड़े कम कॉन्शियस हैं कि क्या आ रहा है, और जब उसको हमको रिस्पॉन्ड करने का टाइम होता है तो उसमें हम शायद थोड़े जो सबका होगा वो हमारा होगा वाला एटीट्यूड लेके चलते हैं। आई फील दैट वी नीड टू चेंज दैट अप्रोच। So this is the old logo of IBSC and this changed to new logo in 2023 में ये logo change हुआ, which is also sometimes denoted by this logo। So हम और IBS भी साथ में change हुआ, तो ये हम समझ रहे थे कि भाई हमने पुराना IBS पढ़ लिया और हम एकदम उसको समझ गए हैं, लेकिन भाई ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चेंज होता रहेगा और आपको कंटिन्यूस उसको नए चेंजेस को समझना पड़ेगा, नए चेंजेस के साथ में रहना पड़ेगा। अगर आप पुरानी टर्मिनोलॉजी ही यूज करते रहोगे या आप पुरानी तरह से ही रिपोर्ट बनाते रहोगे तो वो आईबीएस कंप्लायंट नहीं रहेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट चेंजेस आर कमिंग एंड यू विल हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑफ कोर्स अभी के जो बने हैं तो अगले 2 साल तक 3 साल तक कुछ चेंजेस नहीं आएंगे और इसको आपको अडॉप्ट करना है 31 जनवरी 2025 से मैंडेटरी आपको अडॉप्ट करना है। So it is very important that you understand that what changes have been proposed, changes are coming, and whether you need to change some things in your report format, your reporting terminology, even your scope of work agreements with your client, you need to change some things. So ये हम देख रहे हैं पुराना लोगो, so ये पुराने लोगों का इंडेक्स है, ये नया लोगो है, ये नए लोगों का इंडेक्स है। क्या चेंजेस हुए उसमें हम क्विकली बहुत फटाफट देखेंगे। पहले देखें तो एसेट स्टैंडर्ड्स, अगर आप देखें एसेट स्टैंडर्ड्स, उसमें आपको कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। आप देख लीजिए एसेट स्टैंडर्ड्स, जो आईएएस नंबर थे वो भी वही है और जो टाइटल्स हैं वो भी वही है, एक्सेप्ट प्लांट एंड इक्विपमेंट जो था आईएएस 300, दैट इज नाउ आईएएस 300 प्लांट इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसका भी स्कोप कुछ चेंज नहीं हुआ है, उन्होंने उसके टर्मिनोलॉजी को ज्यादा एलैबोरेट किया है टू एक्सप्लेन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट and should be valued with the plant and equipment. So to clarify that terminology has been added, the scope remains the same. So virtually everything remains the same as far as this is concerned. Of course, within those standards there has been a lot of change. ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चेंज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो टाइटल्स हैं, जो आईबीएस नंबर्स हैं जो हम यूज कर रहे थे, वो आज भी वही के वही है। नीचे एक इंडेक्स था जो आप देखेंगे कि नए में निकल गया है, बट दैट इज दैट। अब हम ऊपर के जनरल स्टैंडर्ड्स की बात करें, उसमें बड़ा फर्क आया है। और क्या फर्क आया है? पहले अगर हम देखें जो इंट्रोडक्शन था वो आज उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड, इट्स मच मोर रिड्यूस्ड, एक पेज का फॉरवर्ड लगा दिया है। सो बेसिकली अ बेयर मिनिमम इंट्रोडक्शन। ग्लोसरी जो हमारी थी वो ग्लोसरी आज भी ग्लोसरी है, लेकिन ग्लोसरी के कंटेंट्स 100% नहीं बट 95% चेंज हो गए हैं। आईबीएस फ्रेमवर्क जो था वो अब जनरल स्टैंडर्ड्स का पार्ट है। सो इट्स आईबीएस 100 वैल्यूएशन फ्रेमवर्क, पहले पार्ट नहीं था।
तो पार्ट नहीं था, तो ये मैं बहुत कॉमनली देखता था कि लोग जब आईबीएस पढ़ना शुरू करते थे तो वो आईबीएस 101 से अपना पढ़ाई शुरू करते थे कि हमको जनरल स्टैंडर्ड से आ सकते। दे विल नेवर डेफर दिस। पहले का 3 चैप्टर्स कोई पढ़ता ही नहीं था, बट फ्रेमवर्क इज अ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द दिस थिंग, सो उसको उन्होंने इंक्लूड कर लिया। सो इसका मतलब क्या है कि लोग उसको नंबरिंग दे दिया। ग्लोसरी क्या आप बाहर रखिए, तो क्या ग्लोसरी इंट्रिंसिक पार्ट है या नहीं है? फॉरवर्ड इंट्रिंसिक पार्ट है या नहीं है? फॉरवर्ड को आप छोड़ दीजिए, उसको आप कंसीडर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट ग्लोसरी इंट्रिंसिक पार्ट है। वो कैसे हम एस्टैब्लिश करते हैं आगे हम देखेंगे कि हम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं कि वेदर ग्लोसरी इंट्रिंसिक पार्ट है और उसको फॉलो करना कंपलसरी है या नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन आज ये आईबीएस फ्रेमवर्क को इन्होंने इंक्लूड कर लिया आईबीएस फ्रेमवर्क 100 में, जो स्कोप ऑफ वर्क हमारा था। अच्छा, इसको इन्होंने क्या किया, पहले के सिस्टम क्या था कि पहले स्कोप ऑफ वर्क आता था, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर रिपोर्टिंग, फिर बेसिस ऑफ वैल्यू और फिर वैल्यूएशन अप्रोचेस एंड मेथड्स। सो प्रोसेस के हिसाब से वो सिमेंटिकली उसको प्लेस नहीं किया गया था। इट वाज नॉट प्लेस्ड इन द सीक्वेंस इन व्हिच वी डू द वर्क इन द प्रोसेस, इट वाज नॉट प्लेस्ड लाइक दैट। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज पहले स्कोप ऑफ वर्क था, फिर उसमें सेकंड चैप्टर आया इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग वाज एडेड एज अ थर्ड चैप्टर वेरी लेटर, फिर उन्होंने बेसिस ऑफ वैल्यू ऐड किया और वैल्यूएशन अप्रोचेस एंड मेथड्स 2016 में ऐड हुआ जाके। तो वो जिस सीक्वेंस में ऐड होते गए उस सीक्वेंस में उनके नंबर आते गए, लेकिन अब उन्होंने उसको चेंज करके सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगा दिया है। सो हाउ डज द सीक्वेंस हैपन? स्कोप ऑफ वर्क आज 101 जो हमारा 101 स्कोप ऑफ वर्क था वो 101 स्कोप ऑफ वर्क रहा। जो इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लायंस था वो चैप्टर अभी भूल जाइए, अभी रिपोर्टिंग को लास्ट कर दिया, बिकॉज़ दैट्स द लास्ट थिंग दैट यू डू, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग हो गया। सो रिपोर्टिंग इज नॉट ओनली रिपोर्टिंग, इट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बेसिस ऑफ वैल्यू ऊपर आ गया, बिकॉज़ स्कोप ऑफ वर्क के बाद इमीडिएटली आपको बेसिस ऑफ वैल्यू पे काम करना होता है, और उसके बाद आता है वैल्यूएशन अप्रोचेस। जो लास्ट चैप्टर था वो थर्ड चैप्टर हो गया 103, बट मींस 103 फोर्थ चैप्टर अदरवाइज, बट 103 अप्रोचेस एंड मेथड्स हो गया। उसको उन्होंने वैल्यूएशन अप्रोचेस ही क्यों लिया? अप्रोचेस एंड मेथड्स है, तो मेथड्स कहाँ गए वो भी हम अभी देखेंगे, वो वहीं पर है, लेकिन उसका चैप्टर इज वैल्यूएशन अप्रोचेस। फिर डेटा एंड इनपुट्स नया चैप्टर आया, वैल्यूएशन मॉडल्स नया चैप्टर आया, और ये जो हमारा इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्लायंस था वो पार्टली इसमें सब्स्टिट्यूट हो गया और पार्टली यानी दूसरे चैप्टर्स में, बट वो हर एक चैप्टर का जहां उसका रिस्पेक्टिव पार्ट था उसमें वो चला गया। सो देयर इज नो चैप्टर लाइक इन्वेस्टिगेशंस एंड कंप्लायंस, इट इज अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस दैट यू डू। तो अब का नया आईबीएस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह चेंज हुआ। अब हम देखते हैं कि हम वो मेथड्स कहाँ चली गई। तो आप देखिए कि जनरल स्टैंडर्ड्स में वैल्यूएशन फ्रेमवर्क विद स्कोप ऑफ वर्क बेसिस ऑफ वैल्यू में एक अपेंडिक्स आ गया। वो अपेंडिक्स क्या है? आईबीएस डिफाइंड बेसिस ऑफ वैल्यू क्या है और अदर बेसिस ऑफ वैल्यू क्या है और प्रीमाइस ऑफ वैल्यू। सो बेसिस ऑफ वैल्यू एंड प्रीमाइस ऑफ वैल्यू जो पहले एक ही चैप्टर था वो अब उसकी अपेंडिक्स हो गई, इसके अंदर 3 अपेंडिक्स आ गई। देख लीजिए कि आपकी 3 अपेंडिक्स हो गई, थर्ड अपेंडिक्स है प्रीमाइस ऑफ वैल्यू। इसी तरह वैल्यूएशन अप्रोचेस में भी एक अपेंडिक्स आ गई जिसका नाम है वैल्यूएशन मेथड। और जो सारे ही मेथड्स हमारे पहले जो वैल्यूएशन एसेट स्टैंडर्ड्स में अप्रोचेस एंड मेथड्स में थे जनरल स्टैंडर्ड्स में, वो आज कंटिन्यू होते हैं। दे कमिंग 103 जो 105 में पहले था वो 103 में आ गया वैल्यूएशन अप्रोचेस, और उसके अंदर अपेंडिक्स आ गई वैल्यूएशन मेथड्स। सो ऑल द मेथड्स आर स्टिल देयर, लेकिन ये कौन सी मेथड्स है? ये वही मेथड्स हैं जो सारे ही वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते हैं जो पहले भी थी। लेकिन अब कुछ ऐसी भी मेथड्स हैं जो पर्टिकुलर एसेट क्लास को ही अप्लाई करती हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट टू कैपेसिटी व्हिच इज स्पेसिफिक टू प्लांट एंड मशीन, हम उसको प्लांट एंड मशीनरी में ही यूज करते हैं। या रेसिडुअल मेथड व्हिच इज ओनली यूज्ड फॉर डेवलपमेंट प्रॉपर्टी। प्लांट तो लैंड एंड बिल्डिंग का पार्ट है, डेवलपमेंट प्रॉपर्टी पे में हम यूज करते हैं रेसिडुअल मेथड। नाउ दीज वर either not defined before or included in those asset standards before,
but now they are specifically included in those asset standards. तो आज अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको एक एसेट का वैल्यूएशन करना है, तो क्या अप्रोच आप ले सकते हैं? 3 अप्रोचेस, कॉस्ट, मार्केट एंड इनकम, ठीक है, वो तो दिया हुआ है। उसके बाद मेथड, तो कौन सी मेथड हम ले सकते हैं? तो आप जनरल स्टैंडर्ड्स पे जाइए, सारी मेथड देखिए, वो उसमें से कोई भी मेथड आप ले सकते हैं। देन गो टू योर पर्टिकुलर जनरल एसेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, उसमें आप जाइए, उसमें भी आपको मिलेगा अप्रोचेस एंड मेथड्स, और उसमें जो नई मेथड आपको दी गई है वो मेथड्स भी आप ले सकते हो, बट दैट इज अ नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट। आप कोई और भी मेथड यूज करके कर सकते हो। मेथड जो है वो नॉन एग्जॉस्टिव है, आप अलग मेथड भी यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज जस्ट। तो दैट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग इट एज एन अपेंडिक्स। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड, नेक्स्ट है IAS 104 व्हिच इज डेटा एंड इनपुट्स। उसमें भी एक अपेंडिक्स आ गई व्हिच इज ESG। ESG is a very important input data which we must consider hereafter। अगर आपको ESG considerations के inputs मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसको आपको अपने valuation में reflect करना mandatory है। It is not obligatory, it is not optional, it is mandatory। लेकिन आप अगर आपको inputs नहीं मिल रहे हैं या उनकी कोई कंसिडरेशन की कोई इम्पैक्ट नहीं है वैल्यू पे, तो आपको वो लिख के उसको कंसिडरेशन नहीं आप कर रहे वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कंसिडरेशन ना दें, दैट इज नॉट। अगर आपका रिपोर्ट IAS कंप्लायंट है ऐसा आप कह रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। कोई भी रिपोर्ट IAS कंप्लायंट तभी बनता है जब वो सारे ही वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, और वो फॉलो करने के लिए आपको सारे ही वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, सारी ही अपेंडिक्स फॉलो करनी है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट इज आईडी वैल्यूएशन मॉडल्स एंड देन टॉक अबाउट वैल्यूएशन मॉडल क्या है। ये काफी लोगों को क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वैल्यूएशन मॉडल? Valuation model is basically the entire method that you have adopted right from taking inputs, data inputs, so आपका approach and method से तो आप value derive करते हैं, लेकिन जो आपका process है that is a valuation method model, and you can do a valuation modeling yourself, or you can even appoint an external agency to do the valuation modeling for you, and that is also included in the new IBS, जिसके बारे में भी हम आगे थोड़ा सा बात करें। थोड़ा सा आगे हम जल्दी जाएंगे ताकि हम टाइमली इसको कंप्लीट भी कर सकें और थोड़े क्वेश्चंस भी ले सकें। नाउ IBS स्ट्रक्चर में जैसा मैंने आपको सारी बात बताई कि बेसिकली जनरल स्टैंडर्ड जो है वो कॉमन टू ऑल एसेट क्लासेस है। सारे ही वैल्यू को, कोई भी वैल्यू हो, वेदर एसएफए वैल्यू है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कोई भी है, जनरल एसेट स्टैंडर्ड्स आपको 100% पूरे फॉलो करने मैंडेटरी है। उसके बाद आपको एसेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स में कौन से स्टैंडर्ड्स में जाना है, न कि केवल अपने एसेट क्लास के। आपको अपने एसेट क्लास के एसेट स्टैंडर्ड्स देखने हैं, जरूर देखने हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपकी वैल्यू कंसीडरेशंस में दूसरी वैल्यू कंसीडरेशंस भी आ रही है, तो आपको वो पर्टिकुलर एसेट का स्पेसिफिक एसेट स्टैंडर्ड्स भी देखने पड़ेंगे। मान लीजिए कि मैं कोई लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू कर रहा हूँ जिसमें नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज है इंक्लूडेड है, और वो मेरे स्कोप में है नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज, तो एसेट 210 नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज को भी मुझे कंसीडर करना, IBS 210 को भी मुझे कंसीडर करना मैंडेटरी है। आई कैन नॉट लीव दैट पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं आपकी दूसरी भी कोई कंसीडरेशंस है, जैसे माइंस के अंदर में दूसरे कंसीडरेशंस हो सकते हैं या कोई भी एसेट क्लास में, तो जो स्पेसिफिक आपकी वैल्यू कंसीडरेशंस है उसके जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको 100% कंसीडर करने हैं। उसमें जब आप कंसीडर करेंगे तो उसकी मेथड्स भी आपको कंसीडर करनी है, उसको भी आपको सोचना है, और देन ओनली योर रिपोर्ट इज IBS। बाकी की हमने बात सारी कर ली है कि लॉट ऑफ डेटा हैज बीन मूव्ड टू जनरल स्टैंडर्ड्स। अब हम अगर IBS के एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखिए
IBS 100, हमने ये सब देखा बेसिकली, लेकिन हम क्विकली देख लेते हैं कि IBS 100 is framework, then you have your scope of work, then you have your basis of value, approaches, inputs, data, valuation models, and your documentation reporting. So it's a process, it's a linear process, a one-way process. You are proceeding in one direction, you follow entire this, and then you follow the specific standards which are applicable for your case. So जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मैं मेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, उसमें मेरी नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी है, तो मुझे IAS 220 नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी कंसीडर करनी पड़ेंगी, और मुझे मेरी 400, या अगर मैं डेवलपमेंट प्रॉपर्टी कर रहा हूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो इसके सारे स्टैंडर्ड्स, और उसके साथ मुझे अगर उसको फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो भी या बिजनेस इंटरेस्ट है, अगर मैं किसी बिजनेस इंटरेस्ट के लिए डेवलपमेंट प्रॉपर्टी को वैल्यू कर रहा हूँ, the property is being valued for, it's a development property, but it's being valued for a business interest, and that happens a lot of times in the IBBI cases also. Then you need to consider those standards. So it's very important to understand most often for tangible assets, financial instruments की valuation तो generally नहीं होती है, but inventory it is possible, non-financial liability it is possible, intangible assets it is possible, business asset interest it is possible. These asset classes may be part of your consideration, and you may have to consider along with your tangible assets, which is plant and equipment or real estate property or development property. So I hope this part is clear. Again, I would like to tell you one thing. At any point of time, अगर आपको लगे कि आप किसी particular point को मुझे elaborate करना चाहते हो, please unmute yourself and interrupt me there and then. एक दूसरा, आप अपना अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हो, you can just press the space bar and talk. The benefit of that is कि आप temporarily unmute होगे, और जैसे ही आप स्पेस बार छोड़ दोगे, अगेन आप म्यूटेड हो जाओगे। तो आप मुझे कभी भी इंटरप्ट करके भी आप मुझे बोल सकते हो, कुछ भी अगर आपके क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ कंसर्न्स है, तो यू कैन प्लीज ब्रिंग देम टू माय नोटिस, सो दैट हम लास्ट के लिए उसको ना रखें, अगर ऐसा जरूरी है तो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, यू वांट मी टू फिनिश, एंड आफ्टर दैट आल्सो वी कैन टॉक। सो वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट हैपेंस इज दैट अगर आप देखें कि ये सारे नंबर्स चेंज हो गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज अगर अपने IBS, जब अपना रिपोर्ट आप बना रहे हैं IBS कंप्लायंट, उसमें अगर आप IBS को बाय नंबर रेफर कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप नया नंबर चेंज करो। जैसे कि IBS 103 वाज रिपोर्टिंग, नाउ इट इज IBS 103 अगर आप लिखोगे तो वो वैल्यूएशन अप्रोचेस की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अब उसका नंबर हो गया IBS 106 डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। So if you are referring to a IBS by the IBS number only, then you will create confusion, and especially if you have only written कि my report is IBS compliant, तो आपने खाली यही लिखा कि मेरी रिपोर्ट है वो IBS compliant है और IBS 103 के हिसाब से मैंने ये कंसीडर किया है। अब किस IBS को आप रेफर कर रहे हो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज की तारीख की अगर हम बात करें तो दोनों IBS एप्लीकेबल है। तो IBS 2022 को आप रेफर कर रहे हो, IBS 2025 को आप रेफर कर रहे हो, पता नहीं चलेगा, तो वो इंटरप्रिटेशन गलत होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट इन द इंटरिम पीरियड यू हैव टू स्पेसिफाई, इवन अदरवाइज इट इज ऑलवेज राइट टू मेंशन द टाइटल विद द फुल नेम कि आप किसको रेफर कर रहे हैं। फिर ये भी तो नेक्स्ट वाला पॉइंट भी उसमें इंक्लूड होगा कि आपको कौन से IBS पर्टिकुलर IBS को आपने रेफर किया है, क्या IBS 2025 के आप रेफरेंस में बात कर रहे हो। ऑल्सो अगर आप ये एक नया लगा है कि भाई जब वैल्यूएशन रिव्यू है, हमारे यहाँ तो वैल्यूएशन रिव्यू का हमको बहुत वो पर्टिकुलर नहीं है। ऑफ कोर्स IBBI के वैल्यूएशंस के अंदर में वैल्यूएशन रिव्यू का स्कोप है और द RVOs आर सपोज्ड टू डू वैल्यूएशन रिव्यू ऑफ सर्टेन मेंबर्स, पर कितना होता है, कितना अच्छे से होता है वो मुझे बहुत पता नहीं है, कुछ जगह होता है, लेकिन वो भी द इंटेंशन इज बेसिकली टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट्स मोर देन एनीथिंग एल्स। लेकिन अगर आप रिव्यू कर रहे हो, किसी RVO ने आपको बोला कि भाई हमारे 5 वैल्यूएशन आप रिव्यू कर दें, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आपको ये मेंशन करना है कि IBS आपने कौन सा फॉलो किया है, वेदर उस टाइम पे जो IBS एप्लीकेबल था उसके रेफरेंस में आपने रिव्यू किया है या अभी के रेफरेंस में, और कौन से IBS को आप फॉलो कर रहे हैं और कौन
सा आईडीएस आज की डेट पे एप्लीकेबल है, वो दोनों आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं आईडीएस फॉर्मेटिंग चेंजेस क्या है। नया आईडीएस जो है वो बहुत ही उन्होंने एकदम बनाया है, उसको चकाचक यानी फीचर्स डाले हैं, उसको हाइपरलिंकिंग किया है, ओवर टिप्स दिए हैं, ऑप्टिमाइज फॉर ऑनलाइन व्यूइंग, डिस्करेजेस प्रिंटिंग, रिमूवल ऑफ इंडेक्स, ये सब चीजें तो उन्होंने मस्त डाली। तो लेकिन क्या डाली अपने जरा इसको लेट अस सी दीस थिंग्स हैंड्स ऑन। आई होप माय स्क्रीन शुड स्टिल बी शेयरिंग एवरीथिंग। सो हम इसको ये जो नया आईडीएस है इसको हम देखते हैं। आई होप दैट यू कैन सी इट। अब ये जो नया आईडीएस है इफेक्टिव 31 जनवरी 2025, इसमें अगर हम देखें तो हम कहीं भी अगर हम ये माउस ले जाएंगे तो वो इमीडिएटली होवर करेगा, उसको हाईलाइट करेगा, उसको हाइपरलिंकिंग दिया हुआ है। तो हम इसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई जगह ये लिंक्स जो है वो काम नहीं करती। नहीं तो आप इसको क्लिक करें तो आप उस चैप्टर में पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो काम नहीं करती। सो दे हैव मेड एन अटेम्प्ट बट इट डजंट वर्क फुल्ली, बट attempt is definitely there. Now again what they've done, that same color coding which was there in the earlier slide, जो tangible assets है वो green में है, जो intangible assets है वो blue में है, और जो financial instruments वो purple में है। तो उन्होंने यहाँ भी किया है, लेकिन वो hyperlinks जो work करनी चाहिए कि मैं इसको click करूँ I should reach that point, that doesn't work in most cases. अच्छा, हम ग्लोसरी की बात कर रहे थे कि ग्लोसरी अगर इंक्लूडेड है कि नहीं तो हमको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ भी देखिए उन्होंने हाइपरलिंक्स दिए, लेकिन अगर ये हाइपरलिंक को हम क्लिक करते तो वो वहां ले नहीं जाता है, which is not right, you know, it should have, that opportunity should have been taken. लेकिन एक उन्होंने जो वो हाइपरलिंकिंग किया है और एक ग्लोसरी का जो पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि ग्लोसरी में कोई भी चीज होगी, बेसिस जो है इज अ ग्लोसरी वर्ड, तो आप अगर उसको यहाँ करेंगे तो अभी मैं एक्चुअली नेट पर से आपको शो कर रहा हूँ कि आपको हाइपरलिंक, हाँ देखिए कि एसेट का अगर मैंने रखा तो एसेट का ग्लोसरी मीनिंग क्या है, द राइट टू एन इकोनॉमिक बेनिफिट, वो यहाँ आपको फॉरवर्ड लिंक में दिख रहा है, राइट। लायबिलिटी की मीनिंग क्या है, द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक बेनिफिट। लायबिलिटी हैज द फॉलोइंग टू एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ए इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एंड बी द ऑब्लिगेशन रिक्वायर्स एन एंटिटी टू ट्रांसफर और अदरवाइज प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू अदर्स। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी as per glossary। तो वो इन्होंने यहाँ हाइपरलिंक पे दिया है। Now this is the indication कि आपको अगर ये फॉलो करना है और इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ ही दी गई है तो ऑब्वियसली आपको फॉलो करना है। So glossary is an intrinsic part। तो मेरा ही उनको ये रिप्रेजेंटेशन था कि जैसे आपने 100 ग्लोसरी को दिया है उसकी अपेंडिक्स में आप उसको इंक्लूड करिए so that it becomes, but their logic is also right कि हमने उसको हाइपरलिंकिंग दिया है, हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। So we don't need to include, just 1 minute, please. My staff needs to leave, so just yeah. I hope my screen is right. So ये बहुत this is a clear indication. So what basically IBS is trying to do is that आप इसको अपने टैब पे, अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे पढ़िए, आप इसकी प्रिंट ना निकालिए। That is why the IBS that you would have received would have the printing disabled. Even अगर आपके पास IBS का कॉपी है तो आप उसको प्रिंट करने की कोशिश करिएगा, उसमें प्रिंटिंग डिसेबल्ड होगा, बिकॉज वो चाहते नहीं है कि हम इतना कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट करें प्रिंट करके, क्योंकि अगर जैसे ही प्रिंटिंग करेंगे तो सारे हाइपरलिंकिंग, ओवरलिंक सब कुछ निकल जाएगा। तो आप इसको ई फॉर्मेट में ही यूज करें। ये खास प्रेस करने के लिए they have kept this as the e version only. Now let's come back to our presentation and continue with it. So what are the other changes that have come? There is a big change about in the terminology. पहले हम कहते थे कि भाई may, should and must. Everybody must be aware of this may, should and must. may जो है वो आपको कंसिडर कर सकते हैं आप, should आपको कंसिडर करना ही है, लेकिन अगर आप नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो आपको जस्टिफाई करना है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, और मस्ट तो आपको करना ही करना है। लेकिन अब आईबीएस ने उसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। अब उन्होंने मे को निकाल दिया। अब जब उसको कंसिडर करना है तो करे, तो उसको हमको तो बताने की जरूरत ही क्या है, उसको करना होगा तो कर लेगा। लेकिन शुड की डेफिनेशन बहुत लंबी डेफिनेशन, लेकिन छोटी सी डेफिनेशन। एवरीथिंग इज बीइंग मेड वेरी कंसाइज एंड वेरी क्लियर इन दिस न्यू गाइड।
So the valuer is expected to comply with requirements of this type unless the valuer can demonstrate that alternative actions are sufficient. Should का वही meaning है, लेकिन उन्होंने बहुत concise कर दिया. And must actions or procedures that are mandatory. बात खत्म हो गई. आपके आगे पीछे कुछ नहीं, आपको करना ही है. अगर आपका रिपोर्ट IBS compliant आप कह रहे हैं तो आपको must की सारी चीजें जो है करनी ही करनी है. फिर वैल्यूएशन रिव्यूज जो थे खाली वैल्यूएशन रिव्यूज थे, अब वो दो टाइप के हो गए, एक वैल्यूएशन प्रोसेस रिव्यू एंड एक वैल्यू रिव्यू. सो वैल्यू कंक्लूजन रिव्यू जो है आपका, क्या आपने वैल्यू फाइंड की, उसको भी आप रिव्यू कर सकते हैं. सो ऑफ कोर्स दैट प्रोविजन वाज देयर बट दैट वाज नॉट एक्सप्लिसिट, बट नाउ इट इज एक्सप्लिसिट. स्पेशलिस्ट एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो नए टर्म इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस बार के आईबीएस में, ये टर्म्स क्या है? ये टर्म्स बेसिकली एक स्पेशलिस्ट, आप किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं. आपको एक वैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूअर हूँ, लेकिन मुझे आयरन और माइन का वैल्यूएशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं. तो आयरन और माइनिंग का एक्सपर्ट को मैं एज अ स्पेशलिस्ट अपॉइंट कर सकता हूँ. लेकिन करना क्या है, मुझे ये बताना है मेरे रिपोर्ट में कि मैंने किस स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया था. मुझे मेरे स्कोप ऑफ वर्क पे भी उसको इंक्लूड करना है, ताकि मेरे क्लाइंट को भी पहले से पता रहेगा कि मैं स्पेशलिस्ट के साथ काम करने वाला हूँ, और मुझे उसके कंसिडरेशंस को की भी जवाबदारी मेरी रहती है. सो देयर इज अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ द कंसिडरेशंस दैट आर ब्रॉट इन बाय द स्पेशलिस्ट. सिमिलरली एक आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को भी यूज कर सकते हैं. वेयर डू यू यूज सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस? आप उनको वैल्यूएशन के लिए, अगेन आपको वैल्यूएशन मॉडलिंग के लिए भी, जो वैल्यूएशन मॉडल्स मैंने किए, कहा आपको बात बताई, उसमें इनफैक्ट इन लास्ट few months I have done valuation modeling for several complex assignments for some clients. That does not mean that वो data उनका है, लेकिन मॉडल मैंने derive कर दिया कि with this method, this process, this assignment should be done. So there is a valuation modeling which you can assign, or you can assign market data collection to a service organization. In fact, financial instruments में ये काम already service organizations करती हैं. There are several organizations which do this work. There are several institutes which are members of IBS also, and they are doing specifically this work. They do it on an international level or on a local level. They do it in a very methodical manner. Such organizations, at least in our region, for tangible assets are not there. But I can use somebody else as a service organization. I can ask Das sir, कि sir मुझे ये assignment उधर करने का, but I am not being able to collect the market data. So can you do that work for me? So ultimately my valuation opinion will be my very own. But I am using Das sir's services as a service organization, and I am declaring it in my report that the market data collection has been done by so and so firm or so and so individual or so and so specialist or so and so organization, and I can use their services, and that is specifically included in IBS now. Now that is in direct contravention to what IBBI allows. अब यहाँ यही प्रॉब्लम आती है, जो आपने स्टैंडर्ड्स अपने जो डिफाइन खुद के किए, अगर आप ऑलरेडी एक के स्टैंडर्ड्स पे अप्लाई कर रहे हो तो उसके स्टैंडर्ड चेंज होंगे, ऑलरेडी आप उसके सिंक में रहो. एक तरफ IBBI बोलता है कि आपको रिपोर्ट जो है वो एज पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, लेकिन जो नए चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस उसमें नहीं है. इनफैक्ट जो एंटिटी रजिस्ट्रेशंस भी IBBI करता है, IBBI क्या करता है, इंडिविजुअल को रजिस्टर करता है और वैल्यूएशन एंटिटीज को भी रजिस्टर करता है. वो पहले IBS में अलाउड था, लेकिन 2022 से IBS ने वो चेंज कर दिया. अब वो इंडिविजुअल को ही वैल्यूअर बनता है, लेकिन IBBI आज भी वैल्यूअर एंटिटी को रजिस्टर करती है. तो देयर इज अ डायकोटोमी, देयर इज अ डिवाइड. वो डिवाइड खड़ा ही रहेगा, क्योंकि आप जिसके ऊपर बेसिस लगा रहे हो उसके स्टैंडर्ड्स को आप रीडिफाइन कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम रहेगी. जो मैंने आपको बताया, जब हम इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स बनाए तब भी ये बहुत समझना जरूरी है कि हम उसको किस तरह बनाएं. नेक्स्ट पॉइंट जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें हम बात करें तो ये मैंने बात आपको पहले बताई कि जो रिव्यू है उसमें आपको वो बताना है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत जरूरी था कि ये रिव्यूज के लिए ये मैंडेटरी करना चाहिए था कि जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे वही आईबीएस फॉलो करना है जो ओरिजिनल रिव्यूअर ने यूज किया है, जो ओरिजिनल वैल्यूअर ने यूज किया है, क्योंकि नहीं तो दोनों के वैल्यू कंक्लूजन एक आने ही नहीं है. सो ये बहुत जरूरी था, लेकिन वो
अपॉर्चुनिटी मिस की गई है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये किया कि आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है। अब कंप्लायंस, जुरिसडिक्शन एंड डिपार्चर्स की बात करें, हम अपने रिपोर्ट में बहुत रेगुलरली लिखते थे कि नहीं हमने कंप्लायंस ये फॉलो किए हैं और जुरिसडिक्शन ये हमारा आईबीबीआई है, और जुरिसडिक्शन जो आईबीआई है उसके रेफरेंस में उसके ये रूल्स है, सो हमने ये डिपार्चर्स लिए। अब उन्होंने ये टर्म चेंज कर दिया है, देयर इज नथिंग लाइक डिपार्चर इन आईबीएस। नए आईबीएस के अंदर डिपार्चर टर्म है ही नहीं। आपका jurisdiction जो है वो ये है, the legal and regulatory environment in which a valuation is performed. So suppose if I am doing the IBS as per, so fair value is the definition that I am using as per IBBI, and IBBI के हिसाब से मुझे valuation करना है, तो मुझे टर्म क्या यूज करना है, मार्केट वैल्यू नहीं करना है, मुझे फेयर वैल्यू यूज करना है, क्योंकि मुझे IBBI के लिए वो काम करने का है। तो मेरा jurisdiction आ गया IBBI, और वो फ्रेमवर्क को अगर मैंने फॉलो किया है तो there is no departure, my report is still in compliance with IBS. अगेन एक था, हम अपने स्कोप ऑफ वर्क में यूज करते थे, पर्पस क्या है। आज कोई क्लाइंट भी हमारे पास आता है, हम कहते हैं पर्पस क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम किस पर्पस के लिए रिपोर्ट हमारे पास चाहते हो, लेकिन वो टर्म अब आईबीएस में नहीं है। नाउ यू कांट राइट पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इज दिस, द टर्म नाउ इज इंटेंडेड यूज, लेकिन उन्होंने उसको, दिस इज आल्सो नोन एज इंटेंडेड पर्पस, इंटेंडेड पर्पस ऐसा रखा है। तो अगर आपको यूज करना है तो आप इंटेंडेड पर्पस ब्रैकेट में इंटेंडेड यूज, या आप उसको पर्पस ब्रैकेट में इंटेंडेड यूज, खास उसको आपको इंटेंडेड यूज आपको जो है वो अब अपना टर्म चेंज करना पड़ेगा फॉर द सेम मीनिंग, मोर और लेस द सेम मीनिंग, लेकिन वो टर्म चेंज हो गया है। अब देयर इज नो डेफिनेशन लाइक पर्पस इन आईबीएस। सो अगर आप अपने इंटेंडेड यूज आपने डिफाइन नहीं किया है अपने रिपोर्ट में, तो आपका रिपोर्ट आईबीएस कंप्लायंट हो ही नहीं सकता। आपको कंपलसरी आपको डिफाइन करना है इंटेंडेड यूज क्या। अब उसमें आप बता दीजिए कि इंटेंडेड यूज ब्रैकेट में पर्पस वो चलेगा, लेकिन इंटेंडेड यूज अगर आपके रिपोर्ट में डिफाइन नहीं है, आपके स्कोप ऑफ वर्क में डिफाइन नहीं है, और आपका स्कोप ऑफ वर्क आपके रिपोर्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप डेफिनेटली आपका रिपोर्ट आईबीएस कंप्लायंट नहीं। आज की तारीख में तो हम ठीक है दे रहे हैं बैंक को, बैंक की फॉर्मेट में लिखा हुआ है और हम लिख देते हैं हमारा रिपोर्ट आईबीएस कंप्लायंट। कितनी चीजें हम इसमें से इंक्लूड करते हैं अपने रिपोर्ट में, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड एंड स्टिल वी आर राइटिंग दैट हमारा रिपोर्ट आईबीएस कंप्लायंट। मेल दिया है तो मैं सब क्यों और भारत के हम ही साथ कुछ होता गया तो मैंने हाँ, क्यों लिख के दे रहे हैं? छुट्टी दिया। So, number of, I have filed number of RTIs with institutions, जैसे कि मुकेश सरकार इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक, I have filed RTI with SBI, I have filed RTI obviously, RTI encourage नहीं करता है, तो उनको भी मैंने लिखा है, मुझे जवाब नहीं देते, that's okay। तो SBI को मैंने ये RTI किया कि भाई आप आईबीएस कंप्लायंट रिपोर्ट मांगते हैं, तो क्या आपने ये चेक किया है कि भाई जो आपकी जो फॉर्मेट है उसमें क्या मैं आईबीएस आज से बात कर रहा है हर चीज को कंप्लायंट। तो वो उन्होंने बिजनेस सीक्रेट बता दिया उसको, उनका बिजनेस सीक्रेट है, तो फिर मैं हाउ डू आई गिव आज भी मिल गया यार रिपोर्ट व्हिच इज इन कंप्लायंस। ठीक है। अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस्ड है, वैल्यूएशन रिस्क। ये टर्म पहले कभी नहीं था। So now it is mandatory for you to mention in your report that what is the valuation risk. Now, valuation risk is defined as the possibility that the value that the valuer is applying is not appropriate for its intended use. तो अगर आपने गलत मेथड या गलत अप्रोच यूज किया है, या गलत डेटा पे रिलाई किया है, या गलत एनालिसिस किया है, तो इनमें से कुछ भी, तो आपका there will be a valuation risk, and it is mandatory for you to declare that what is the valuation risk in your report. So अगर आपने valuation risk ऐसा करके there is no valuation risk या there is what valuation risk अगर आपने include नहीं किया है अपने रिपोर्ट में, तो that report is not IBS compliant. अगर मैं आज अपने रिपोर्ट में SBI की रिपोर्ट में लिख दूं कि valuation risk, the risk is that the data that I have relied upon is a hearsay data, and there are no evidences of value, and that is a valuation risk, and hence the value may not be appropriate for the intended use. SBI is not going to accept my report. I cannot declare the valuation risk, whatever may be the valuation risk. I cannot declare it in my report. बैंक लेगा ही नहीं, कोई भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो मैं नहीं लिखता हूँ, तो वो बैंक तो रिपोर्ट
एक 31 जनवरी 2025 के बाद वो रिपोर्ट आईएएस कंप्लायंट होगा ही नहीं। ये डाइकोटोमी है जिसके बीच में फ्रेमवर्क द valuation Sorry, sir, sir. yes please Again, on Please, this sir. valuation risk part, can you give example of valid valuation risk in case of plant and machinery? Let's not. I mean, I'm a plant and machinery value, so that's not my experience. yeah surely so basically plant and machinery के केस में valuation risk क्या होगा कि जैसे जो आपने रिपोर्ट आपके पास आया है एसेट है वो लिक्विडेशन में बैंक आपको कहती है आपको मार्केट वैल्यू देनी सही है मेरी बात सही है कि नहीं सही है तो आप मार्केट वैल्यू जो प्रॉपर्टी जो लिक्विडेशन में है उसके लिए आप मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू की जो आईवीएस की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ही आपको देनी है अगर आप दे रहे हैं नॉर्मली डिस्काउंटिंग करके हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन नहीं आप मार्केट वैल्यू की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आप वैल्यू दे रहे हैं और पर्पस भी आपका अपने जो है बैंक पर्पस लिखा ठीक है लेकिन एक्चुअली द एसेट इज इन लिक्विडेशन Right. then the value is not appropriate for its intended use and that's a valuation risk Okay. Which means that you are differentiating between a valuation which is for an NPA and something which is not an NPA. in this particular case Alright. let's look at another situation कि बैंक के पास एक जो बायर आ रहा है जो प्रपोजर आ रहा है जो वैल्यूएशन के लिए वो अपनी नेबरिंग प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है Right. there is a steel plant and he's doing an expansion with the neighboring steel plant or with the neighboring unit or merging the neighboring unit plant and machinery आप कर रहे हैं Right. yeah he is buying so there is some synergistic value you understand that Absolutely. so Yeah. that synergistic value you are not reflecting in your report or you are reflecting in your report one of the two you will do Yeah. That's right. या तो आप synergistic value consider करके आप report दोगे the synergistic value is actually not for the purpose of funding That's true. That's true. synergistic value So but you अगर have आप given- idea के लिए दे रहे हो तो you have आपको given a very, synergistic very value tricky consider situation. करनी This is a very हाँ so the thing is that you need to declare कि मैंने ये consider किया है this may be a valuation risk but हम ये नहीं कर पाते हैं 90% of the scenario In any case, we have to consider two methodologies for evaluation. yes right so basically the underlying factor is that the value is not appropriate for the intended use. Generally, ये situation कब आती है कि जब हम wrong approach या method लगाते हैं, तब definitely आपकी value जो आती है वो appropriate नहीं होती। Okay. Yeah, that's good. Normally, जैसे मैं purchase कर रहा हूँ resort और उसको मैं land and building से value कर रहा हूँ, क्योंकि वो बैंक वही चाहती है, right? लेकिन एक्चुअली इनकम अप्रोच से देखना मैंडेटरी है लेकिन वो मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि उसके लिए ना मुझे क्लाइंट पे कर रहा है ना बैंक कह रही है ना कोई मांग रहा है बट भाई जब वैल्यू जो दे रहा है वो इंटेंडेड यूज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है उनको दोनों मेथड से लैंड एंड बिल्डिंग प्लस इनकम अप्रोच दोनों कंसीडर करके और अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके अपना ओपिनियन देना है एक्चुअली तो ये सिचुएशंस में हमको एक्चुअली वैल्यूएशन रिस्क डिक्लेयर करना मैंडेटरी है और उसमें भी आप ये कह सकते हो कि स्कोप ऑफ वर्क में आप इंक्लूड कर लीजिए कि ये अप्रोच ये मेथड से आपको वैल्यू करना है आपने वो इंक्लूड कर लिया आप वही मेथड से करोगे और आप वैल्यूएशन रिस्क डिक्लेयर कर दो कि द स्कोप ऑफ वर्क इज टू डू द वैल्यूएशन एज पर लैंड एंड बिल्डिंग मेथड आई मीन नॉट लैंड एंड बिल्डिंग इट्स अ मार्केट अप्रोच or cost approach whichever so whatever approach and method it is with the scope of work but
the value may not be appropriate for the intended use. Now I got Okay. it. Thank you so much, sir. Welcome. So एक नया और भी टर्म है दैट इज वैल्यूएशन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप अपने नए रिपोर्ट के अंदर में वैल्यूएशन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल्स को डिक्लेयर नहीं कर रहे हो देन अगेन योर रिपोर्ट इज नॉट आईबीएस। देयर मस्ट बी वैल्यूएशन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल्स around the valuation process. The control help ensure that valuations are performed objectively, transparently, without bias and in compliance with IBS, and the extent of control should be determined having regard to the intended use. आप किस पर्पस के लिए उसको कर रहे हो, आपका यूजर कौन है, एसेट और लायबिलिटी क्या है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वैल्यूएशन क्या है, इसको कंसीडर करके आपको कंट्रोल्स अपने एस्टैब्लिश करने हैं। और द कंट्रोल्स शुड असेस द जजमेंट्स मेड ड्यूरिंग द वैल्यूएशन इंक्लूडिंग देयर रीजनेबलनेस and freedom from bias in determining the value. तो ये एक नया इंट्रोडक्शन है जो अभी तक हमारे IBS में नहीं था। The controls should be documented. This is very important. Your IBS 106, sorry. IBS 106 is documentation and reporting. Your documentation is very important. So पहले हम रिपोर्टिंग करते थे हमारा काम खत्म हो जाता, लेकिन अब ये बात नहीं है। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? कुछ चीजें इवन अगर आपके रिपोर्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं भी है तो भी वो आपके प्रोसेस में आपके पास सिस्टमैटिकली होनी चाहिए कि आपने वो कंसीडरेशंस किए, उसका जजमेंट क्या आया और उसके आपने इनपुट्स क्या यूज किए अपने रिपोर्ट। सो दैट documentation must have the quality controls on it. The documentation should contain sufficient detail to allow another value, which is probably a value or reviewer applying professional judgment to understand the effectiveness of the control. आपने अपनी तरफ से gibberish में कुछ लिख दिया और बोल दिया कि नहीं, ऐसे नहीं, it has to be documented properly such that अगर कोई दूसरा पर्सन उसको देखे तो वो उसका जजमेंट आपने सही डिराइव किया या नहीं वो कर सकता। सो वैल्यूएशन और प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के लेके काफी इलैबोरेट उनके स्पेसिफिकेशंस हैं जो अगेन सम अदर डे वी कैन गो इनटू द डिटेल्स। जो मैंने बात करी अप्रोचेस एंड मेथड्स को हम क्विकली देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है। सो जो अप्रोचेस पहले अप्रोचेस थे वही अप्रोच है, जो मेथड्स थे वो उसके अपेंडिक्स में आ गए हैं, काफ़ी हैं। वो अब इंडिविजुअल स्पेसिफिक एसेट क्लास के अंदर हैं, लेकिन ये सारे ही एसेट क्लासेस को कॉमन नहीं है, सो वो जनरल एसेट क्लासेस जनरल स्टैंडर्ड्स में इंक्लूडेड नहीं। It's very important to go through the methods and approaches, approaches and methods subsection of your asset class now. Someday, if we have time, we can talk about that also. Otherwise, I will try to share a presentation also on that, so which will give you a brief idea as to what are the new approaches and methods. But of course, the best thing is that आप एक बार उसको पढ़ लें अपने asset class के specific। अब जो हमारा डेटा एंड इनपुट्स का नया चैप्टर दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स जस्ट लुक एट सम ऑफ द ग्लोसरी मीनिंग्स ऑफ व्हाट इज डेटा। डेटा इज व्हाट, हम डेटा को क्वांटिटेटिव मेजर में ही देखते हैं। क्या रेट चल रहा है दैट इज डेटा, कितने फुट है वो डेटा है, हमारी प्लांट एंड मशीनरी किस साल में है वो हमारा डेटा है, कितनी पुरानी है, उसकी इफेक्टिव एज क्या है, उसकी इफेक्टिव रेसिडुअल लाइफ क्या है, उसकी रेसिडुअल वैल्यू क्या है। No, the qualitative information is equally a part of the data. What is input? Data, assumption, adjustments determined to be relevant. So you get a lot of data, you get a lot of information, but आप उसमें से डिसाइड करते हो कि मुझे क्या-क्या चीजें मेरे में रेलेवेंट है और उसको आप यूज करते हो। That becomes your input. And observable data, ये एक नया टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। Observable data is information that is readily available to market participants about actual events or transactions that are used in determining the value of the asset and liability. अगर there is a observable data और अगर आप उसको consider नहीं कर रहे हो, then that means you are overlooking some observable data, and that means your report will not be IBS compliant. You have to, so whatever is available in public domain, whatever is available to you as observable data, that you have to take into consideration.
इसको हम ज़्यादा डेटा इनपुट्स के बेसिकली इट्स अ वेरी शॉर्ट चैप्टर. All these new chapters 104, 105, they are very short chapters. So there's only one data and inputs has only basically introduction, user specialist or service organization which we talked about. So for your data and inputs, you can use all of these characteristic of relevant data. What is the relevant data? And then input selection and data and input documentation. And very importantly, there is this ESG considerations. Now, ESG considerations, I will not go into detail at this point of time. There is basically आपको क्या की inputs, ये नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है. जो आपका एसेट है उसके रेलेवेंट में आपको एयर एंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेट चेंज या क्लीन वाटर के क्या इनपुट्स आपको मिल रहे हैं, क्या रेलेवेंट कंसीडरेशंस है, ये आपको डिसाइड करना है और उनको आपको कंसीडर करना मैंडेटरी है. जब हम सोशल इनपुट्स की बात करें तो कम्युनिटी रिलेशंस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी क्या है, पॉलिसीज उनकी क्या है, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल क्या है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट उनका क्या है, जेंडर इक्वालिटी और रेशियल इक्वालिटी कितनी वो फॉलो करते हैं. All these are very important social inputs that you need to take into considerations and what is their impact on value aspect. गवर्नेंस फैक्टर्स की अगर हम बात करें, अगेन ये भी नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि ऑडिट कमिटी स्ट्रक्चर उनका क्या है या बोर्ड डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चर क्या है, ब्राइबरी एंड करप्शन पॉलिसी उनकी क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डोनेशंस, ESG रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या रेगुलेटरी कॉस्ट उनकी क्या है, रेम्यूनरेशंस क्या है, ये सारे फैक्टर में से कितने फैक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू इनपुट आपकी क्या आ रही है, वैल्यू कंसीडरेशंस क्या आ रही है, वो आपको कंसीडर करना मैंडेटरी है. बट दिस इज नॉट an exhaustive list. Specific to each asset class, asset type, specific asset, you will have to decide कि क्या-क्या ESG factors. ये आपको एक खाली indicative list दी है ताकि आपको एक आइडिया आए कि भाई क्या-क्या इनपुट्स को कंसीडर किया जा सकता है. इसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि भाई ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर एसेट के लिए, तो वो आपको कंसीडर वैल्यूएशन मॉडल. अगेन बहुत छोटा चैप्टर है, जैसे मैंने बताया नो मॉडल विदाउट वैल्यू लाइक सोशल जजमेंट. फॉर एग्जांपल इन ऑटोमेटिक वैल्यूएशन मॉडल कैन बी यूज्ड इन आईबीएस कंप्लायंट वैल्यूएशन. कोई भी वैल्यूएशन जिसमें अगर प्रोफेशनल जजमेंट इंक्लूडेड नहीं है तो वो आईबीएस कंप्लायंट रिपोर्ट नहीं हो सकता है. एवीएम प्रोड्यूस्ड रिपोर्ट कभी भी आईबीएस कंप्लायंट रिपोर्ट नहीं हो सकता है एज ऑफ टुडेस डेफिनेशन IBS compliant. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अगेन स्पेशलिस्ट और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस का रोल और एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन मॉडल्स की बात की गई है. मॉडल सिलेक्शन एंड यूज कैसे करना है, मॉडल का रिकमेंडेशन कैसे करना है. अब व्हाट आर द बेसिक necessary characteristics of data and inputs and valuation model. चार चीज कॉमन है दोनों चैप्टर में. That is that the data and inputs as well as valuation model, the characteristic is it has to be accurate, complete, timely and transparent. ये चार चीज अगर आपके डेटा में या इनपुट में है और अगर आपके वैल्यूएशन मॉडल में है तो बिल्कुल सही है. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से दो चीज बहुत, थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्यूरेसी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइमलीनेस भी इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे मेरा असाइनमेंट 3 दिन के टैग में देना है तो 3 दिन में जो मेरे पास डेटा आ सकता है वही मेरा डेटा हो सकता है. ऑब्जर्वेबल डेटा जो मैं अगर सपोज आरटीआई से 1 महीने बाद पा सकता हूँ वो मेरा ऑब्जर्वेबल डेटा नहीं हो सकता. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार ये कहते हैं कि भाई ये ऑब्जर्वेबल डेटा है. भाई ऑब्जर्वेबल डेटा तो तब मिलेगा ना अगर मुझे किसी कोई इंफॉर्मेशन मुझे आरटीआई से मांगी है. आज आपने मुझे बैंक ने बोल दिया कि have you checked the authenticity of the plan. Authenticity of the plan 3 दिन में मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है तो मैं टाइमलीनेस में वो फैक्टर आता ही नहीं है. I cannot do it. Then you don't have to take that consideration for your report to be IBS compliant. Yes, अगर आपने रिपोर्ट में लिखा है कि yes I have checked the authenticity, that is a different obligation that you have towards the bank. But IBS compliant report के लिए आपको उसकी authenticity चेक करना जरूरी नहीं है because timeliness में वो फैक्टर नहीं है. ये just मैंने एग्जांपल दिया आपको. ऐसे एग्जांपल में खाली ऐसे काफी चीजें हो सकती हैं. कंप्लीटनेस इंपॉर्टेंट है लेकिन
एक्यूरेसी ऑफ कंपनी टेस्ट इस रेफरेंस में देखना है कि टाइमली आपको मिल रहा है, आपकी स्कोप ऑफ वर्क में टाइमलीनेस, कितने टाइम में आपको वो रिपोर्ट कंप्लाई करनी है, वो आपका स्कोप ऑफ वर्क अगर डिफाइन कर रहा है कि 15 दिन में आपको रिपोर्ट देनी है, तो आपको अपने एनालिसिस और वर्क के लिए निकाल के डेटा इनपुट्स के लिए आप हफ्ता भर दे सकते हैं मैक्सिमम। तो ये आप जब स्कोप ऑफ वर्क अपना क्लाइंट के साथ कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक टाइमलाइन आप डिफाइन करें। कई बार वैल्यूअर ये बोलता है मैं क्यों बोलूं यार, जब क्लाइंट नहीं कह रहा है तो मैं क्यों लिखूं। भाई तुम नहीं लिखेगा तो तू ये एनीथिंग बिकम्स योर ऑब्जर्वेबिलिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंक्लूड दैट। Economic offense wing, sorry, enforcement director gave me a work order saying that you have to submit this report in 7 days. The 7 days did not say 7 working days. So 7 days means मुझे अगर assignment Monday को मिली है तो अगले Monday को मुझे उसको submit करना। I can only take as many inputs, right? Why should I contest that? I will rather do my work in a manner such that I can justify my work. So कई बार हम जो चीज़ों को अपनी तरह से नेगेटिवली लेते हैं वो एक्चुअली हम अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम अपना काम सही तरह से करें, यस, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको अपने टाइम फैक्टर के अंदर भी करें। और ट्रांसपेरेंसी अगेन। सो नाउ वी हैव 5 minutes and I will be able to complete presentation की रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है कि अगेन जैसे मैंने आपको बताया डेटा इनपुट्स और दोनों में यही है कि ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग, जो पहले हमारा खाली रिपोर्टिंग था वो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग हो गया है। An IBS compliant valuation must have sufficient documentation and reporting to subscribe and provide transparency to the intended user. Try and understand this. Transparency to the intended user अगर आपको क्रिएट करनी है तो sufficient documentation and reporting, तो यानी आपको वो सारी ही चीजें अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तभी जाके वो इंटेंडेड यूजर को पहुंचे, राइट? तभी आपका रिपोर्ट आईबीएस कंप्लायंट। वैल्यूएशन अप्रोचेस, वैल्यूएशन मेथड्स, इनपुट्स, वैल्यूएशन मॉडल्स, प्रोफेशनल जजमेंट and the resultant value or values. The results of valuation or valuation review must be documented and reported in writing and may include paper, electronic files, or other forms of media. Documentation is a written record of the valuation or valuation review and may include communications with the client, with working papers, or both used to support conclusions reached in compliance with ideas. Documentation must be maintained to describe the valuation or valuation review and must be sufficient to describe the conclusion reached by the valuation. Here आप देखिए जो भी इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, ये सारे इटैलिसाइज्ड वर्ड्स जो है वो सारे ही वर्ड्स वैल्यूएशन रिव्यू, वैल्यूएशन, मस्ट, जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट, वैल्यूएशन, ये जैसे आईबीएस में भी जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स है उनका मीनिंग है कि आपको ग्लोसरी में जाके उनका मीनिंग देखना है। ये सारे ही ग्लोसरी डिफाइंड टर्म्स हैं, तो इनकी स्पेसिफिक मीनिंग आपको ग्लोसरी से ही डिफाइन करनी है। In some cases, all documentation is included in the valuation report or valuation review report. In other cases, depending on the agreed scope of work, additional documentation must be maintained. आपने सारा documentation अपने report में नहीं लगाया है, लेकिन अगर scope of work में वो clear है कि आपको reporting में कितना करना है, तो बाकी का documentation आपको फिर भी maintain करना है। तो ये बेसिकली हमारी बात हुई कि क्या एडिशंस हुए, क्या रिमूवल्स हुए, लेकिन ग्लोसरी के अंदर में कुछ एडिशंस हुए, रिमूवल्स हुए, उसको हम क्विकली देखते हैं कि क्या नए टर्म्स ग्लोसरी में आज नए ऐड हुए। देयर आर टर्म्स, सेवरल न्यू टर्म्स एडेड, ऑटोमेटेड वैल्यूएशन मॉडल्स, डेटा, ईएसजी, इनपुट, इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ऑब्जर्वेबल डेटा क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, ये सारी चीजें नए टर्म्स डिजाइन किए गए। और ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत जरूरी है। बेसिकली आज तक हम कहते थे प्रोफेशनल जजमेंट, ये वैल्यूअर का प्रोफेशनल जजमेंट है। अब आईबीएस वेरी क्लियरली सेज दैट अ वैल्यूअर हैज टू हैव अ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। व्हाट इज स्केप्टिसिज्म? स्केप्टिसिज्म इज बेसिकली जब आप अपने वैल्यूएशन को देख रहे हो, जब आपके डेटा को देख रहे हो, इनपुट्स को देख रहे हो, मैनेजमेंट
प्रेजेंटेशंस करता है, मैनेजमेंट आपको कुछ डेटा दे रहा है, यानी क्लाइंट आपको कोई डेटा दे रहा है, मार्केट में से आपको कोई डेटा मिल रहा है, इंटेंडेड यूजर आपको कोई इनपुट दे रहा है, तो आपको उसको स्केप्टिकली देखना आपकी फर्ज है. You have to look like you are doing an investigation, and that is the meaning of professional skepticism. Lot of times you find नहीं, वहाँ पर मैं गया था तो मैंने इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ये रेट चल रहा है. आपने क्या इंक्वायरी की? नहीं, तो वहाँ क्या रेट चल रहा है वही पूछा था मैंने. Now the minute you say that you want to buy an asset, the price that you get is different. The minute you say you want to sell an asset, the rates that are quoted are very different. The minute you say कि मुझे वैल्यूएशन के लिए ये चाहिए, अलग तीसरा ही बिल्कुल नया रेट मिलेंगे. Are you using your professional skepticism when you are providing for your bank? And that is very important, and that is now included in IBS that you have to have professional skepticism. स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये हमने देखा. सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट को सेपरेटली डिफाइन नहीं किया गया था. दिस टाइम आईबीएस इज डिफाइंड व्हाट इज द वैल्यूएशन डेट, व्हाट इज द वैल्यूएशन मॉडल, वैल्यूएशन प्रोसेस रिव्यू, वैल्यूएशन रिस्क एंड वैल्यू रिव्यू. All these are new terms that are defined in IBS. So we saw all of this. I'm sorry for this repetition. Okay. Now we talk of the terms, glossary terms which have been deleted. So now you have your fair market value जो पहले डिफाइन की गई थी वो हटा दिया गया. फेयर वैल्यू जो IFRS के हिसाब से डिफाइन की वो भी हटा दी गई है. मीन, पार्टिसिपेंट, पर्पस, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट एसेट, वैल्यूएशन पर्पस और पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन रिव्यू, रिव्यूअर, वेटिंग and worth. All these terms are no more included in IBS. If you use these terms, you have to define what is meant by these terms. And if you not use the terms that are defined in IBS, then your report is not IBS. अब इसमें ये दो terms क्यों हटा दी गई? Again मैं अपनी पूरी पुरानी बात पे आऊँगा. Sorry, I've exceeded. Just give me one more minute and we should be done. 2 more minutes. एक fair market value और फेयर वैल्यू आईएफआरएस से दोनों टर्म्स हटा दी गई है बिकॉज ये टर्म्स कहीं और से ली गई थी. आईएफआरएस में से ली गई थी और दूसरी को अमेरिकन स्टैंडर्ड से ली गई थी. तो उन्होंने अब उसको हटा दिया. क्यों? क्योंकि अब वो जो डिफाइन करते हैं, they have said that our value definitions are non exhaustive. तो वो रीडिफाइन करके आप अपने में वही डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस क्यों करना चाहते हैं? जब उन्होंने पहले ये पास में मिस्टेक की थी तो इस बार उनको हटाना पड़ा. हम अपने इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स में भी यही मिस्टेक ना करें, ये बहुत जरूरी है. जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि हम जब इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम वो रिपीटेशन ना करें जो मिस्टेक कई चीजों में आईबीबीआई ने भी की है. फिर ग्लोसरी टर्म्स जो चेंज हो गई है, ये सारी ग्लोसरी टर्म्स का डेफिनेशन चेंज कर दिया गया है. The definition is still there, but all of these have been redefined in some way or the other, and some very few definitions which have been retained. Cost की definition, discount rate, equitable value, market value, and valuation model. ये 5 ही definition ऐसी है पूरे उसमें जो आज भी चेंज नहीं हुई. बाकी सारा IBS में या हट गया है या चेंज हो गया या ऐड हुआ या डिलीट. So it's very important that you look at your understanding of IBS once again and come to your decision as to अब के समय में अगर आपको अपना रिपोर्ट IBS कंप्लायंट बनाना है तो आपको क्या चाहिए. With that, I come to the end of my session. I would like to just end it with a joke again, with a cartoon again, which also has got a very important message. एक टाइम था जब वो बच्चा कहता था वीडियो गेम लेके आया तो वो खुश हो जाता था. Oh my God, mom, I love you. वो वीडियो गेम आ गई. आज उसको दिया PSP लेके आए. मैंने बोला था PS3 लाना है आपको, अभी पुराना PSP लेके आए. इसका क्या मीनिंग है? वही है, अगर आप कल के भी टाइम में वही IBS 2022 पे रिपोर्ट बना के जाओगे बोले ऐसा किया. अरे आपको नहीं पता है IBS 2025 आ गया अब तो समय के साथ बदलो भाई. तो ये बहुत जरूरी है कि
as the times change, we have to keep changing, and that was basically what I wanted to share with you. With that, I come to an end or to my presentation. We still have some time, and if there are any questions, we can discuss. Otherwise, obviously, we can, of course, discuss any other aspects. Over to you, Das sir. Over to you, Aiba. गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत सीखा आपसे। आईवीएस के बारे में बहुत लोगों को डाउट था, तो मेरे ख्याल में आपके बाद से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो मेंबर के तरफ से या जो लोग हमारा दूसरे स्टेट से जुड़े हुए हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हम हर महीने सेकंड सैटरडे को हमारे से जुड़े, और हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो लोग आए। और हम एक छोटी सी टोकन भेंट हम अपना स्पीकर साहब से, जो गुरु जी को हमने बाय व्हाट्सएप और बाय ईमेल में भेज दिया है। हम प्यार भरा रहना चाहिए, तो प्यार और नमस्कार। साहब को कहीं जल्दी में जाना भी है, अगर ओपन डिस्कशन में कुछ सलाह कुछ पूछना होगा तो 5 मिनट के लिए आप डिसीजन कर लीजिए, ताकि साहब को अपने टाइम हम छोड़ सके, कि हमने उनको प्रॉमिस किया था 8 बजे को छोड़ देंगे। तो अगर आपको कुछ पूछना हो ओपन डिस्कशन में, आप कम समय लेके उनसे कुछ क्वारी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल वो इतना पढ़ा दिए, हम लोग सीख गए, और ज़्यादा कुछ डाउट है ही नहीं मेरे ख्याल हम लोग का। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ 5 मिनट का टाइम है। I would very much welcome members के कहीं जैसे मेरी समझ से अलग भी कोई है समझ, तो वो भी मैं बहुत appreciate करूँगा if any of the members can even bring in their own viewpoint. Otherwise, if there are any questions also, we'll be very happy to take them. The whole purpose actually of this or any webinar or any seminar is interaction. So मुझे आप लोगों से बहुत कुछ लेना है, तो मुझे कुछ थोड़ा मिलेगा तो मुझे मेरा भी फायदा होगा। So I welcome सर any views or any questions. हम मेंबर के तरफ से Mr. Sarjan, thank you, Mr. Sarjan. How are you, good sir? Fine, we're fine. Tell me, please. Have any change in the fees of bank valuation? This is fees is now what I say very low at present. Sir. So have any improve? नहीं, मुझे तो कोई जगह से ऐसे I have no inputs that any bank is increased. In fact, banks are in a competition to कौन ज़्यादा कितनी कम जल्दी reduce करता है। ऐसी कंपटीशन चल रही है शायद उनके बीच में कि अच्छा इसने रिड्यूस की और हमारी नहीं हुई है तो हमारी भी रिड्यूस कर देते हैं हम। दौड़ लगी हुई है शायद, लेकिन शायद हमको ही कुछ समझना पड़ेगा कि भाई हम वैल्यूएशन रिस्क जैसे हम डिक्लेयर करना जरूरी है, ऐसे हमको भी कितना रिस्क लेना है और किस प्राइस पे लेना है। कई सिचुएशंस में काम करने से न करना शायद ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा सस्ता हो सकता है, लेकिन ये शायद हमारी पैटर्निटी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक जगह के डिसाइड करेंगे कि नहीं देयर इज अ डेटम लेवल के जिस पे हम काम करेंगे, उससे नीचे हम काम नहीं करेंगे, या कुछ प्रकार के काम हम नहीं करेंगे जो हमारे एथिक्स या हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो वो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। Yes, sir. With respect to your statement that fee is something which we command due to our by virtue of our knowledge and what we are the reports, the way we generate them. We cannot demand it. We can command it. If we are good enough, yes, we can demand even a higher fee structure, whatever they do. I fully agree with you, sir. I fully agree with you. And for that, we need to build our strength, one, and we need to also not only see, कई बार मैंने ये देखा है कि there is that inner strength, but that confidence is not there to command the fees. So people like you and together we can make that difference. I have seen a lot of times that people feel that. मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता था। जी सर।
हमने जो भी वैल्यूएशन रिस्क की बात करी है, तो यदि हमने वैल्यूएशन रिस्क जैसा आपने कहा था वैल्यूएशन रिपोर्ट रिस्क रिपोर्ट में नोट कर दिया तो कोई रिपोर्ट नहीं लेगा, बट यदि हमने नोट नहीं किया उसका बाद में एंड हमारे डिस्क्लेमर में है, तो तब हम लोग क्या करेंगे? आपकी बात 100% जिस तरह रियल एस्टेट में ब्लैक कंपोनेंट हाईली अवेलेबल कन्वर्ट होता है तो इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में जब बैंक फेल करने जाता है तो व्हाइट का पैर नहीं मिलता, तो वो जो ब्लैक का कंपोनेंट का डिफरेंस आएगा, हाउ वी कंपेंसेट इफ यू नॉट टेक रिस्क इन आवर रिपोर्ट? Nilesh sir, can I answer this? Yes, Gurmeet sir, please go ahead. I'll answer this. Sir, as it is in our present reports, we are already giving a section called CIDs, that is caveats, limitations and disclaimers. We are already adding all this in that. Now we have a separate head called evaluation risk. We have to report it there. That's it. I feel it is that way. I think so, sir. Gurmeet sir, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन for 90% of the valuers, the situation is that बैंक उनको बोलती है कि आप ये हटा दीजिए, वो हटा दीजिए, और वो हटा भी देता है काफी चीजें. So, but as per IBS, as it is already, we cannot put anything in a CID which renders the report non-usable. 100%. लेकिन सर जो रिस्क है, जो इंट्रिंसिक रिस्क है, उसको तो आपको डिक्लेयर करना है सर. That is already declared in See, CID. अच्छा आपके पास सर्वे रिपोर्ट नहीं आया है, या सपोज आपके पास एसेट है, तो आपकी एसेट आपने प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, मैं बात कर रहा हूँ, तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, लिक्विडेशन में है, आपने उसको वर्किंग कंडीशन में नहीं देखी है, so you will definitely declare that some certain assumptions are made. Yes. Certain special assumptions are made, which again will differ from the assumptions also. That's correct. So all those things you have done, but the fact is on a routine basis ये सब सर क्या होता है जब एसेट को हम स्पेसिफिकली एक प्रोफाइल के वैल्यूअर के पास जब बैंक आती है तो ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर, लेकिन फॉर द रेस्ट जब उनको मास फंडिंग करनी होती है तो वो वैल्यूअर्स ढूंढ लेती है जो ये कुछ भी नहीं लिखेंगे. I understand. See, I may look a little like Gandhiji, but I'm a big fan of him. Till you bring the lowest of the masses above, you can't float up. Absolutely. ये बहुत सही बात है सर. जब तक हम डेटम लेवल को थोड़ा ऊंचा नहीं करेंगे, हम एक लेवल से ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते. Correct. We have to raise the bar. Yes, we have to raise the bar. But sir, we are competing the low-level persons who are ready to write everything in their report, and there is no highly compliance in a bank standard format. Sir, मैं आपकी बात 100% agree करता हूँ. How we sort treat this situation? सर मैं आपकी बात से 100% अग्री कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये सिचुएशन क्यों है इसका मैं दूसरा भी रीजन बताता हूँ. सर पिछले 10 साल में कुछ वैल्यूअर्स को कुछ प्रॉब्लम हुई, अब कुछ बातें बाहर आ रही हैं. उसके पहले प्रॉब्लम होती थी तो कभी बात बाहर नहीं आती थी. प्रॉब्लम होती थी सर, प्रॉब्लम होती थी, इतनी नहीं होती थी जितनी आज हो रही है, लेकिन होती थी, लेकिन बात कभी भी बाहर नहीं आती थी. तो रोजी पिक्चर इतना हमने बना के दिया हमारी फ्रैटर्निटी का कि आज ये सिचुएशन में हम हैं. आज ये जरूरी है अगर मैं कुछ फेस कर रहा हूं मैं खुल के उसके बारे में बोलूं. किसी को भी अगर मैं गुरमीत सिंह जी की एक बात है तो मैं गुरमीत सिंह जी का नाम लेके शायद ना बोलूं, लेकिन मैं बोलूं कि एक हमारे वैल्यू और दोस्त, एक मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं, मैं गुरमीत सिंह जी का कोई भी ऐसा, आई एम जस्ट टेकिंग अ नेम. I have been involved in say n number of justifications, reviews, negative actions. तो ये सारे केसेस के अंदर में शायद 5% केसेस से भी कम केस के अंदर में वैल्यूअर की कहीं कुछ गलती नहीं, लेकिन 95% केसेस के अंदर में वो सिस्टम का भोग नहीं. लेकिन हम इन चीजों को कभी बाहर नहीं आने देते, क्योंकि डर रहता है कि भाई उसका धंधा पानी बंद हो जाएगा. अरे नाम न लो, नाम लिए बगैर बात कर लो यार, लेकिन
फ्रैटर्निटी को बताओ तो सही कि क्या हो रहा है। आज अगर मैं यहाँ आया हूँ और अगर मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मनोज सर आए थे या कोई भी, कि मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि भाई बैंक हमारे पास ये जो है लिखवा रही है, लेकिन ये लिखना हमारे लिए कितना डेंजरस है, तो आई एम डूइंग अ डिससर्विस। आई थिंक आई एम डूइंग अ डिससर्विस। तो हमको थोड़ा खुल के बात करना बहुत जरूरी है। हमारे बीच अगर हम बात नहीं कर सकते हैं तो हमारा डूम मैंडेटरी है। जो लोग नए प्रोफेशन में आ रहे हैं या जो लोग काफी समय से प्रोफेशन में है लेकिन फिर भी कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस या अनफेयर प्रैक्टिसेस या अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज कर रहे हैं, उनको कई बार या तो इसके रिस्क के बारे में पता नहीं है या वो उसका सिंकिंग फंड अलग लगाते जा रहे हैं कि भाई ठीक है वो जब आएगा तो उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन we have to understand that there are several risks. चलिए सर, 7:59 I think it is time for me to jump off this thing. It has been a pleasure being with you all. My heartfelt apologies for having to jump off since I have a hard stop at 8. I have to join for a dinner commitment which I had already done in the past. So thank you all. Sir, I look forward to Thank you, sir. thank you, thank you. बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छा लेक्चर, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, everybody. सर एक मिनट रुकिए, हम प्रेजेंटेशन प्लीज मेल कर दीजिए दास साहब को। 100%, 100%. Without ललित, I will call you again. surely, sir. और सर मेरे ख्याल तो स्पीकर ही चले, कोई कॉपरेट डिस्कशन हुआ नहीं है, तो मैं अपना जॉइंट सेक्रेटरी ललित मिश्रा से कहूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ललित मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी आईवा। थैंक यू भैया। आज हमारे चीफ गेस्ट जो मनोज कुमार श्रीवास्तव जी थे, उनका मैं पहले सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा कि वो इस मीटिंग में आए और उन्होंने जो है हम लोगों के विचार सुने और अच्छा लगा मुझे, हम सभी को अच्छा लगा होगा उनका गेट टुगेदर आज। और आज के जो टेक्निकल जो सेशन था जिसके लिए डिले जी आए थे, उन्होंने बहुत ही बढ़िया आईओएस के बारे में बताया सर, धन्यवाद सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आए हुए सभी आईवा के मेंबर्स को मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मीटिंग ज्वाइन की और अपने अपने विचार रखे। धन्यवाद सर। अगली मीटिंग में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे अगले सेकंड सैटरडे को। मैं छोटी सी हमारा जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के आगे थोड़ा बढ़ाते हैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा मेंबर के अलावा कुछ लोग दूसरे स्टेट से भी थे, मैं उनको भी कहूँगा कि हर महीने सेकंड सैटरडे को वो भी हमसे जुड़े। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।